डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ओपन युनिव्हर्सिटी. Hello everyone, I hope you all are doing well. Be positive, stay positive, and always ready to learn something new, right? So let us start with some new topic today. I am Neelam Pandya, Assistant Professor, Vocational Professional Department, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, welcomes you in a Chaitanya Studio online lecture series of BBA course. Our paper code number 303. Block number 2, unit number 1, which is basics of computer. So let us start with the basic introductory part, that what is computer and the basic definition of computer, the parts of computer, hardware, software, which kind of software are available in the latest technology and today's trend. So let us start. First of all, we all know that कंप्यूटर बेसिक्स बिकॉज आज का जो ट्रेंड है कि कहीं पे जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ या एजुकेशन सेक्टर में जाओ या मेडिकल में जाओ या कोई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, गवर्नमेंट कोई भी प्रकार के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, मीन्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ ईच एंड एवरीवेयर. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस. So in today's session we are going to learn what is computer and how does computer work. Learning objectives: define the terms of computer, describe the key characteristics of computer, trace the evolution of computers, describe the generations of computers, identify the types of computers, and describe the applications of computer, means how and where to use the computer applications. First is introduction. Computer is the most powerful tool man has ever created. Computer have made a great impact on our everyday life. Today, computer technology has permeated every sphere of existence of modern human being. With the growing information needs, the computer has become the vital components for survival of business houses. Their presence is felt among the every working place, from the bus and railway ticket reservation to satellite launching, from the retail stores to medical diagnosis, from the home use to research and design organization. Everywhere we witness the elegance, the sophistication and the efficiency possible only with the help of computer. So what जो लास्ट पैरा है वो क्या कहना चाहता है? सो अगेन आई रिपीट, यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर की जो प्रेजेंस है वो आज के ज़माने में क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे लिखा है कि देयर प्रेजेंस फेल्ट ऑलमोस्ट एवरी वर्किंग प्लेस. आइदर द बस प्लेटफॉर्म है, रेलवे टिकट है, रिजर्वेशन करवाना है, हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उनको जो मेडिकल रिपोर्ट करनी है या फिर पेशेंट के रिकॉर्ड उसमें डालने हैं, तो कंप्यूटर के बिना आज के ज़माने में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है. दिस इज़ द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फ्रॉम टुडेज सिनेरियो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. The term computer is derived from the word compute, which means to calculate. In the simplest form, the computer can be defined as a programmable machine. In a more formal way, it can be defined as an electronic machine capable of performing calculation, other manipulations of various type of data under the control of stored set of instruction. मीन्स कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं. तो एक तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो सकती है, फिर डेटा मैनिपुलेट भी हो सकता है, मैनिपुलेट होके आउटपुट हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है सारी चीज़ें हैं उसमें इजीली स्टोर हो जाती है. Computer is an electronic device that manipulates the information or data. Either it is in information form and either it is in a data form. It has the ability to store,
retrieve and process the data. Computer's full form: Common Operating Machine, proposally used for technical and educational research. कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, जो मशीन है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, वो किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है? तो आइदर टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होता है, रिसर्च के लिए यूज़ होता है, एजुकेशन के लिए यूज़ होता है, हेल्थ के लिए, मेडिसिन के लिए, मतलब इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल सेक्टर्स. Computer is an electronic machine that can store, find and arrange the information and calculate amongst and control all the data. Now this is the showing working of computer. Computer कैसे काम करता है उसके पार्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है. तो सबसे पहले है इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस जो है वो कौन कौन से है? तो वो है कीबोर्ड है, माउस है, जिससे हम इंफॉर्मेशन उसमें इनपुट कर सकते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहेंगे. वो आगे हम डिटेल में जानेंगे कि विच काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल. एंड CPU is a brain of computer. Without CPU there can be not possible to the existence of computer. So जो सारी चीज़ें, जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, मैनिपुलेट होती है, कैलकुलेशन होती है, वो सारी चीज़ें CPU में ही होती है. तो CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. एंड देयर इज़ अ आउटपुट डिवाइस. सो टोटल 3 टाइप ऑफ जो पार्ट्स है वो कंप्यूटर में अवेलेबल है. फर्स्ट विच इज़ अ इनपुट डिवाइस, सेकंड इज़ अ CPU विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड थर्ड विच इज़ अ आउटपुट डिवाइस. अब आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा? लाइक मॉनिटर है, वो आगे हम डिटेल में जानेंगे. नाउ यहाँ पे जो स्लाइड शो कर रही है उसमें एक लेडी है, वो चेयर पे बैठी है और वो कंप्यूटर का यूज़ कर रही है. तो उसमें यहाँ पे एरो करके दिखाया है कि जो लेडी है वो कंप्यूटर यूज़र है. हार्डवेयर कौन कौन से है? तो मॉनिटर है, उसे हार्डवेयर बताया है, और सॉफ्टवेयर जो मॉनिटर पे शो कर रहा है. मॉनिटर पे क्या शो हो रहा है? जो भी सॉफ्टवेयर है, लाइक जिस सॉफ्टवेयर में भी 2 टाइप होते हैं. एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं. इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में आता है आपका जो MS विंडोज़ है, MS ऑफिस है, जो CPU में ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, उसे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है. और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसे आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, उसमें काम कर सकते हो, और काम करने के बाद उसे अनइंस्टॉल, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो. तो द सॉफ्टवेयर विच इज़ टू बी इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल, उसे हम क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे लिखा है कि अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट डिजाइन टू प्रोसेस द डेटा एंड स्टोर फाइल्स. अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अ यूजर ऑफ फुल्ली फंक्शन. सो यहाँ पे शो हो रहा है कि देयर इज 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे बताया गया है कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, कैमरा है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है. ये सारे इनपुट डिवाइस है जिससे हम इंफॉर्मेशन इनबिल्ट कर सकते हैं उसमें कंप्यूटर में. आउटपुट डिवाइसेस, the output devices is monitors, printers, speakers, headphones, projectors. These all are output devices. Characteristics of computer. To understand why computers are such important part of our lives, let us look some of its characteristics. Then which kind of characteristics of computer? First is the speed, which is very important. Typically, computer can carry out 3 to 4 million instruction per second. कोई भी इंफॉर्मेशन है या फिर इंस्ट्रक्शन है, वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कैरी कर सकता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. तो दिस इज ऑल अबाउट अ स्पीड ऑफ कंप्यूटर. सेकंड इज एक्यूरेसी. Computer is very high degree of accuracy. Errors that may occur are usually due to inaccurate data,
wrong instruction or a bug in a chips, all human errors. अगर जो कोई अगर हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी गलत स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ भी मिस्टेक हम उसमें डालते हैं तो उसमें अंडरलाइन करके रेड लाइन या ग्रीन लाइन शो करता है. तो जो ह्यूमन एरर्स है उसे भी वो एक्यूरेट करता है कंप्यूटर. नेक्स्ट इज अ रिलायबिलिटी. Computers can carry out some type of work rapidly without throwing up errors due to tiredness of boredom which are common among humans. तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का. एक्सेल में आप कोई भी कैलकुलेशन डालो, करोड़ों में हो चाहे लाखों में हो, चाहे कोई भी प्रकार का बड़ा कैलकुलेशन आप उसमें डालोगे, फॉर्मूला डालोगे, तो कभी भी वो गलत फॉर्मूला करके जो गलत आंसर है वो आने के चांसेस 0% है. तो कंप्यूटर्स जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो रिलायबल होती है. वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है या फिर कोई भी प्रकार का डेटा है, गलती के चांसेस बहुत ही कम है, इनफैक्ट नहीवत है. वर्सेटिलिटी. Computers can carry out a wide range of work from the data entry and ticket booking to complex mathematical calculation and continuous calculation from each and every unit. तो वर्सिटैलिटी की भी बात की है, जैसे अभी मैंने MS एक्सेल की बात की कि कोई भी आप लाइक सैलरी का काम कर लो या फिर कुछ भी बड़ा कैलकुलेशन कर लो एक्सेल में, तो आफ्टर एंड ऑफ द रिजल्ट जो आएगा वो एक्यूरेट आएगा, रिलायबल आएगा, उसमें गलती के कोई चांसेस ही नहीं है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. Computer is an electronic device that is used to perform diverse operations with the help of instruction to process the data in order to produce the desirable result. डिज़ायरेबल रिजल्ट मिलते हैं इसी वजह से स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सिटैलिटी एंड लेक ऑफ इंटेलिजेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन. जो करंट जनरेशन है वो तो आई थिंक 7th जनरेशन अभी चल रहा है, बट जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री में हम जाए तो फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी वो क्या थी. The first generation of computers are used to vacuum tubes for circulately the magnetic drums for a memory and were often too enormous taking up the entire rooms. मीन्स एक वैक्यूम ट्यूब की तरह आता था, एक चिप की तरह. वो फर्स्ट जनरेशन का जो मॉडल था वो उस तरह का था. इन अ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर रिप्लेस टू वैक्यूम ट्यूब. फर्स्ट जनरेशन इज वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब को ट्रांसफ़र किया, रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने, तो वो ट्रांजिस्टर का ज़माना था, वो था सेकंड जनरेशन. द इंटीग्रेटेड सर्किट वेर यूज इन अ थर्ड जनरेशन. जो सर्किट थी वो उसने रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर को. तो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड जनरेशन. द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर. फोर्थ जनरेशन में क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर आया, उससे ही सब काम होता था. And now we are talking about 5th generation. A microcomputer is a small and low cost digital computer, include desktop, laptop and mini computers. Is a small digital computer more powerful than a microcomputer. So यहाँ पे एक चार्ट दिया है कि how many types of generations जो पास्ट में जो कंप्यूटर का उद्भव है वहाँ से लेके अभी तक करंट सिनारियो क्या है. तो जो हमने लास्ट जो डिस्कस किया वही है, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स डेवलप्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो समय है, समय का चक्र मतलब जो फ्लो ऑफ टाइम है कि टाइम के हिसाब से जनरेशन चेंज होती रहती है, ट्रेंड चेंज होता रहता है. अभी तो जो करंट ट्रेंड है पूरा डिजिटल है, कहीं पे डिजिटलाइजेशन के बिना कहीं पे भी काम पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है कि जनरेशन किस साल में कौन सी जनरेशन थी.
तो फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें था 1942 से लेके 1959 तक, उसमें वैक्यूम ट्यूब थे और पंच कार्ड थे। उसके कैरेक्टरिस्टिक थे सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली, वेरी कॉस्टली, जनरेट अ लॉट ऑफ हीट एंड ह्यूज साइज एंड कंज्यूम द लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो पूरा सीन है वो फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की उसका है कि 1942 से लेके 1959 तक सारे वैक्यूम ट्यूब के फॉर्म में थे और पंच कार्ड के फॉर्म में थे। बट उसके जो कैरेक्टरिस्टिक थे कि खाली वो मशीन लैंग्वेज को ही आइडेंटिफाई करता था, वेरी कॉस्टली, जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, ह्यूज साइज एंड कंज्यूम अ लॉट इलेक्ट्रिसिटीज। तो इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज थे। फिर आया सेकंड जनरेशन विच इज़ फ्रॉम 1959 टू 1965। वो किस फॉर्म में थे, तो ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक टैप्स। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है बैच द ऑपरेटिंग सिस्टम फास्टर, स्मॉलर एंड रिलायबल दैन प्रीवियस जनरेशन। जो प्रीवियस जनरेशन थी उससे थोड़ा बेटर था, बट उसके भी काफ़ी सारे डिसएडवांटेज भी थे। थर्ड जनरेशन विच इज़ फ्रॉम 1965 टू 1975 विच इज़ कॉल्ड अ लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टैप्स, उसके फॉर्म में थे। उसके कैरेक्टरिस्टिक पर अगर हम देखें तो उसमें लिखा था टाइम शेयरिंग ओएस, फास्टर, स्मॉलर एंड रिलायबल एंड चीपर देन मैग्नेटिक टैप्स। तो जो सेकंड जनरेशन थी उससे थोड़ा कम कॉस्टली था एंड ईजी टू अपडेट हम कर पाते हैं। नाउ दिस इज़ फॉर द फोर्थ जनरेशन 1975 से लेके 1998 तक। उसमें लिखा है ICS विद द VLS टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक टैप्स एंड फ्लॉपी एज अ पोर्टेबल फ्लॉपी डिस्क के फॉर्म में आया फोर्थ जनरेशन। और उसके कैरेक्टरिस्टिक में लिखा है कि मल्टी प्रोसेसिंग एंड GUI OS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, स्मॉल, अफोर्डेबल, इजी टू यूज, इजी टू अपडेट। फिफ्थ जनरेशन 1998 टू प्रेजेंट, तो उसमें क्या लिखा है ICS विद द ULSI टेक्नोलॉजी, लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क with a rapid support, optical disk as a portable read only storage media, powerful serves internet, cluster computing, and characteristic is all about powerful, cheaper, reliable, easy to use, portable, rapid software and development as per possible। तो सिस्टम का नाम क्या है, तो हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन के सिस्टम के नाम। तो फर्स्ट जनरेशन की सिस्टम है उसका नाम है ENIAC करके था एंड TBM 701। सेकंड जनरेशन में जो मैग्नेटिक टैप्स आए उसमें सिस्टम का नाम था IBM 7030, हनीवेल 400, CDC 1604। देन थर्ड जनरेशन hardware feature name is magnetic taps and system name is IBM 360 upon 370, CDC 1600, PDP 8x11। fourth generation hardware feature ICI with VLSI technology, magnetic taps and floppy as portable, and system name is Apple II VAX 9000 Grey 1x2। and now is about fifth generation hardware feature. We already discussed that internet, cluster computer, read only storage media, and system names is IBM international business machine, Pentium and परम जो है वो सुपर कंप्यूटर है, परम 1000 करके सुपर कंप्यूटर आया था। So this is the example is given, examples of super computers. Cray 1 which is invented in 1976, Cray 2 which is invented in 1985, Cray T3D 1993, NEC's SX by 44 which is invented in 1991। then as on Param 1000 series है वो which is super computer of IIT Guwahati।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसे 1000 परम कंप्यूटर विच इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, काफ़ी सारे सुपर कंप्यूटर्स है। तो ये एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है कि सुपर कंप्यूटर है उसका पूरा सेटअप कैसे होता है और उसमें काम कैसे होता है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या क्या है, कौन सी जगह पे कंप्यूटर काम आता है। तो एज अ जनरल फॉर्म में हमें ऑलरेडी पता है कि अभी का जो ट्रेंड है विच इज़ डिजिटलाइजेशन, जो है डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। तो आज कंप्यूटर के बिना कहीं पे भी आइदर देर इज़ अ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आइदर देर इज़ अ हॉस्पिटल, आइदर देर इज़ अ एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, computer is everywhere. Without computer we can't imagine a single task of work, right? So here the applications of computer is given. Science. Scientists are using computers to carry out their research work based on complex computation because of computers fast speed and accuracy. Then second is education. In a school, in a colleges, to make a education much more interesting, computers are used nowadays. Computer aided education, CAE, computer based training, CBT packages are making learning more interactive. Third one is the health and medicine. Starting from the diagnosis, the illness, monitoring patient status during a surgery, in a pathological analysis, in a CAT scan or MRI scan, etc. Doctors are using computers. Some special purpose computers are available which can be operated with the human body. Fourth one is engineering. Engineering and architect are using computers in a designing machineries, drawing design layout. Architects can object that can be viewed from all the three dimension by using technique like virtual reality. In a manufacturer industry, using computerized robotic arms can be performed. The packages like computer aided designing and everything with the help of computer. Then this is the entertainment sector. आगे हमने क्या देखा, साइंस। तो साइंस में भी कंप्यूटर ज़रूरी है बिकॉज रिसर्च करना है, ये सब करना है। तो विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन सेक्टर के लिए भी अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में भी इम्पॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग में इम्पॉर्टेंट है। देन एंटरटेनमेंट सेक्टर, जो पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ है, टेक्नोलॉजी है, कैमरा के सामने कैसे काम करना है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, एक एक जो शॉट्स लेते हैं उसका रिकॉर्ड रहता है, फिर उसे कट पीट करके पूरा फाइनल जो है वो रेडी होता है, फाइनल recording. तो entertainment with the use of multimedia facilities, computer are now greatly used in entertainment industries. Computer are used to control, bring a special effect, image and sound. अगर कोई बंदा कैसा लग रहा है तो उसका पूरा लुक चेंज होता है with the help of technology, right? So now today's scenario, everything is possible with the help of computer, editing, multimedia, everything. Communication, computer network and finally the internet brought the drastic change in a communication system. Through the email, electronic mail, it is possible to send messages, reports very fast from one to another person and with the help of computer. मीन्स जो ईमेल सिस्टम है या कुछ भी ऑफिशियल हमें काम करना है, मेल करना है, तो ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर की हेल्प से ही कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ बिजनेस एंड बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कंप्यूटर इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दूसरे सेक्टर के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क एंड फाइनली द इंटरनेट हैज़ ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम थ्रू द ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड बिजनेस एंड बैंकिंग सेक्टर में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी जो सीए के फॉर्म है, सीए वाले फॉर्म जो टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, उसमें भी पूरा टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से ही होता है।
तो वहाँ पे भी विदाउट हेल्प ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग भी नहीं हो सकती, बैंकिंग भी नहीं हो सकता, कोई भी माइक्रो लेवल या मैक्रो लेवल का बिजनेस आपको करना है तो आज के ज़माने में कंप्यूटर के बिना दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जो बेसिक थिंग है कंप्यूटर की वो। तो यहाँ पे एक मैंने कंक्लूड करके 5-6 लाइन यहाँ पे रखी है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म diverse operation with the help of instruction to process the data in order to proceed the desirable result। एंड व्हाट टोटल 3 पार्ट है जो हमने डिस्कस किया कि इनपुट डिवाइस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सिटैलिटी एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। Computer development is divided into 5 generation. Current generation is I think 7th generation. So this is all about the basic things about computer. तो आज के ज़माने में कंप्यूटर के बिना कुछ भी काम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एंड बेसिक चीज़ें हमने जानी। आगे के नेक्स्ट यूनिट में हम डिटेल में जानेंगे कि हाउ टू वर्क विथ MS वर्ड, हाउ टू वर्क विथ MS एक्सेल, हाउ टू मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ ऑल द इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, एक प्रॉपर और अच्छा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी इफ़ेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, फिर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी क्या है, उसके सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे की जो लेक्चर सीरीज़ होगी पेपर नंबर 303 विच इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें आगे के जो यूनिट्स आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। Till then, stay happy, stay healthy, and be positive, and have a great time ahead. Thank you. स्वाध्यायः परः